Hi everyone, I hope you guys are staying safe and keeping well on health. The COVID cases are increasing like anything, so it's just high time that we should take good care of ourselves. Anyway, today I'm going to chit chat with Major Rudrashish, and it was a huge pending chit chat that I was really looking forward to, and finally it's happening. So hi Major Rudra, how are you? I read a lot of comment in your interview sections. Like I used to follow you, and then there were a lot of sections like conduct a session with Major Rudrashish and all. Yes. So I used to comment back also. Ki, yeah, whenever she has the time, I am ready to get interviewed by her. So thank you so much. Okay, so how are you? I'm fine. I'm fine. I'm doing good. I'm in Kolkata at my hometown, and that's it. Okay, I was really, so the one thing I was really excited to chit chat with you. There were huge hell lot of questions regarding to army life or NDA that I couldn't ask to General Bakshi uncle or General Dogra because they have reached to a certain age where I have to be little shy. I can't ask those questions. So I was like, okay, I'll just dig in this man like anything. So yeah, absolutely. Actually, क्या है ना वो those people have reached a place where you can't just throw any questions at them. अभी Exactly. हमारे हमारे ऊपर चलते हैं, हमको कुछ भी पूछ लो हम जवाब दे देंगे, हम लोगों का काम ही यही है. But then at that age and that service, you need to ask them questions which, I mean, they can answer. It's of their stature. अभी हमारा तो क्या ही है, हमसे तो कुछ भी पूछ लो, हम यार दोस्त की तरह है. So that I can understand. So you can just shoot with all the questions you have, and I'm ready to answer. Okay, so Rudra, first thing you cleared NDA, and I'm personally very intrigued by this question. That okay, this man was in army, was a major rank, and he cleared NDA, and suddenly you left, and you wanted to pursue acting, right? So were there people who criticized you? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे ऐसा होता है, सडनली आप कहीं Criticism बहुत है. पहुँचते हैं, तो उसका क्या सीन था, कैसे डील किया या किस टाइप के लोग थे? और मुझे एक चीज बहुत क्लियर है, मैंने कभी ना जिंदगी में एक ही चीज फॉलो किया है कि लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया. बस आर्मी में थोड़ा बहुत I faced difficulties छोड़ने में because though I was doing good in army, so people were not like really they were शुरू में उनको लगा कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं. कौन बोलता है कि मैं मूवी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं दोबारा से बॉलीवुड ट्राई करना चाहता हूँ, वो भी आरएमसी वाला, एनडीए वाला, फिर आईए हाँ, में करके आरएमसी। लेफ्टिनेंट बना, फिर कैप्टन बन के भी मेजर है. मतलब जनरली आप क्या होता है ना कि आप मेजर तक आपको लगता है कि नाउ आई एम सेटल्ड इन आर्मी, अब तो मतलब एवरीथिंग इज स्मूथ, अभी जो है आगे आगे होता रहेगा. यस यस यस। बट देन जब मेरा सब कुछ स्मूथ हो गया, व्हेन एवरीथिंग वाज सेटल्ड, देन आई डिसाइडेड कि नहीं अब तो सेटल तो हो ही गया. अब सेटल मेरा ऐसा ही है कि आई बिलीव इन एक्सप्लोरिंग माय साइड्स, कि सब कुछ है तो ट्राई करना चाहिए. एक ही लाइफ है, अभी अगले लाइफ में मैं मेरे में पता नहीं इतने कैपेबिलिटीज हो कि ना हो, मैं कुछ कर पाऊं कि ना पाऊं, ये पता नहीं. सो इस लाइफ में जितना है उतना तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ. इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था. मैंने एक दो इंटरव्यूज में बताया भी है कि मैं डीडीएलजे देखा था तो मैं सॉस लगा के उसका जो लास्ट फाइटिंग सीन है ना, उसको मैं इमिटेट करता था. Then I अच्छा। used to imitate all the cricketers. I was a very good cricketer myself, and I used to imitate all the cricketers. द्रविड़ बोलो, गांगुली बोलो, सचिन बोलो, मैं उनको एकदम से इमिटेट कर देता था. तो वो तो था ही मेरे में. प्लस एनडीए एकेडमी गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बड़ा, मतलब बेसिकली भांड बोलते हैं एकेडमी में, जो भी ऐसे हाँ। एक्टिंग एक्टिंग करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि तू बहुत बड़ा भांड है. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बड़ा भांड हूँ, क्योंकि जब मुझे सीनियर पकड़ते थे तो सीनियर पनिशमेंट तो देते थे, लेकिन 10-15 मिनट में वो मतलब मेरा भांडपंती देख के हंस देते थे कि यार तू कैसा आदमी है, तू मतलब अलग ही है, तू कुछ भी बता देता है, कुछ भी बोल देता है. कभी कभार मतलब मैक्सिमम टाइम शायद मैं छूट जाता था, कभी कभार उल्टा भी पड़ जाता था. कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते थे तो उनको लगता था कि तू बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है ना, रुक अब तेरे को बताता हूँ. Who's been your motivation throughout this journey? माय पेरेंट्स ही मेनली है जिनसे मैं मोटिवेशन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि द बेस्ट थिंग दैट दे हैव टॉट मी इज लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं है. नथिंग इज योर्स एज वेल. कोई भी चीज आपके लिए आपका ही नहीं है. सो यू आर ऑल्सो टेम्पररी फैक्टर. तो मुझे लगता है कि जब सब कुछ टेम्पररी है तो फिर ट्राई करने में क्या जा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम नॉट गोइंग टू कैरी एनीथिंग विद माई सेल्फ. तो मुझे लगता है वो डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा, गलत कर Yeah. दूंगा, क्या दुनिया क्या सोचेगी, तो वो डर चला गया. सो दे मोटिवेट मी अ लॉट, एंड अदर देन दैट आई ऑलवेज लुक फॉर अ बेटर माई सेल्फ टुमारो. लाइक अगर मैं आज ऐसा हूँ तो मैं सोचता हूँ कल कैसे थोड़ा बेटर बनूं. तो यही कोशिश करता हूँ बस, बाकी तो
Okay, you sounding so positive. So I just want to ask this question. There's so many kids. मतलब एक 12th में एक अलग सा बहुत लड़कों के अंदर स्पेशली इतना ज्यादा जज्बा होता है एनडीए क्लियर करने का. तो स्पेशली अब जब नहीं जा पाते हो तो there's a different stress. तो वो स्ट्रेस को कैसे डील करना है if you can't make it to armed forces? अब मैं उस स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा तो आधे लोग सोचेंगे कि यार खुद तो कर लिया. एक डायलॉग हमेशा मैं जब एसएसबी की क्लासेस लेता हूँ मैं बताता हूँ, जब आप हाँ. हो जाए तो ठीक है, योर जर्नी बिगिंस. Yeah. अगर आपका नहीं होता है तो एसएसबी के गेट के बाहर जब आप बैठे रहते हो कि आपको लगता है कि अरे यार मेरा नहीं हुआ, so you have to understand that your journey does not end at that gate. You just have to look up and say that okay, here is where my journey starts and I'm going to create something more beautiful. तो ऐसा करना चाहिए. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं बेचारे बिछड़ जाते हैं, कुछ फोन नहीं वहां पे, कुछ नहीं. एनडीए के चक्कर में. हाँ, हफ्ते 10 दिन महीने में छुप छुप कर कहीं से वो लैंडलाइन वाले से बहाने कर करके फोन करते हैं. तो ऐसे सब सीन आपने तो बहुत विटनेस किया होगा, कैसे बेचारे डील करते हैं. हमें याद है एनडीए में हमारे पास एक कार्ड आता था, वो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते थे, उसका 100 रुपए वैल्यू होता था, बीएसएनएल का कार्ड. हाँ. और बीएसएनएल का इतना बढ़िया कार्ड की पहली बात तो उससे 4-5 दिन ट्राई करो तो छठे दिन में वो कार्ड काम कर जाता था. हाँ. बाकी टाइम, और वो भी फोन के टाइमिंग होते थे. फिर कोई आपको फोन कर ले फिर तो वो अलग ही बात है कि चलो यार किसी ने मेरे को फोन ही कर लिया, वो अलग बात है. बट उधर बात नहीं हो पाती थी. बट आई थिंक कि सब कुछ टेस्ट ऑफ टाइम है. अगर आप बहुत बहुत ऐसे भी हैं जो वो वाले रिलेशनशिप फेज को सस्टेन कर गए और वो आज मैरिड है, गुड, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड. और जो नहीं सस्टेन कर पाते फिर वही वाली बात है कि द ट्रेनिंग वाज टफर देन यू वर, बट देन यू हैव टू रियलाइज कि either the training is tougher or you are tougher than the training. अगर आप ट्रेनिंग से टफर हो तो आपका रिलेशनशिप भी सर्वाइव कर जाएगा, ट्रेनिंग भी कर लोगे. And if your relationship is weaker than the training overtakes and you just, lose the touch. Your funniest memory or just like most memorable scene or anything from army days or academic days? बहुत सारे हैं, मतलब ये तो मैं बताता ही रहता हूँ बहुत सारे किस्से कि जो मेरे साथ आरआईएमसी एनडीए में होता है. तो हाँ, एक एनडीए वाला एक शेयर करता हूँ. सिंस आपने ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बोला तो मैं बताता हूँ. अब हम सिंगल लड़के थे तो हम तो गए मूवी देखने. तो मूवी देखने जब मैं गया तो ऐसा हुआ कि हम लोग लेट हो गए थे. रंग दे बसंती, पता रंग दे बसंती नहीं, आई थिंक कौन सी एक मूवी थी. वी वर बिट लेट, तो थोड़ा लाइट ऑफ हो जाता है ना तो दिखता नहीं. तो हम 10-12 लड़के थे. तो इस मूवी का एक, अच्छा, इस मूवी का प्रीक्वल भी है, फिर वो है बीच में मूवी में क्या हुआ वो भी बताता हूँ. तो सबसे पहले मजेदार बात ये हुई कि टिकट मेरे पास दिया था. और मेरा ना एक बहुत खराब आदत है कि अगर मुझे टिकट दे दो या कोई भी कागज मिल जाए ना तो मैं क्या करता हूँ, अगर वो कागज इंपॉर्टेंट भी है तो मैं जनरली या तो पॉकेट में भर लूंगा. अगर नहीं भरा है तो मेरा सबसे बुरा आदत है कि मैं उसका ऐसे बॉल बना के फेंक देता हूँ डस्टबिन. अच्छा. तो जब टिकट मिला तो मैं, टिकट 10-12 लोगों का टिकट था तो मैंने ऐसे बॉल बनाया. मैंने रियलाइज नहीं किया, फेंक दिया. अब जब हम वहां पे पहुंचे वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ. पहले तो मेरे को लगा कि कोई कागज है, कागज हाथ में रख के क्या करना, फेंक दिया. अब हम मूवी में पहुंचे तो सब ढूंढ रहे टिकट और मुझे याद नहीं कि टिकट मुझे दिया गया था. तो हम सब एक ही बंदे को जिसको हमेशा टिकट देते उसी को खाली मार रहे कि अरे तुम पागल हो क्या यार, क्या कर रहे हो यार, तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 12 लोगों का टिकट है, कहाँ है. तो अचानक मुझे ना एकदम बात होते होते यार किसके हाथ में दिया था किसका, तो मुझे रियलाइज हुआ यार मैंने कुछ फेंका था कहीं. वो मुझे अब ध्यान नहीं कि वो टिकट है. तो मैं दौड़ के गया, दौड़ के जाए, इसीलिए हम लेट हो गए बेसिकली. मैं दौड़ के गया, वो डस्टबिन में से मैं ढूंढा तो वो कागज का गोला मिला. कागज का गोला जब खोला तो देखा वो 12 टिकट थे. तो मैंने 10-12 टिकट थे वो मैंने फेंक दिए. तो मैं किसी तरह लेके आया और फिर मैंने जब बताया कि देखो इसके लिए बाद में जो बताना है बता देना, अभी मूवी के लिए लेट हो रहे हैं. तो अब हम लेट घुसे तो अब सभी को हड़बड़ी है कि यार जल्दी बैठे, वो सीन ना मिस हो जाए, क्योंकि कैडेट डेज में ना हम नहीं चाहते कि एक भी सीन मिस हो जाए. मुझे बहुत पसंद है कि मैं शुरू से मूवी देखूं, हर एक सीन देखूं. मुझे वो जो अक्षय कुमार का, मतलब वो जो मुकेश हिरानी बहुत फेमस कैरेक्टर है जो स्मोकिंग खाता था, जो मर गया था बेचारा कैंसर से, मैं वो भी नहीं छोड़ता था. मतलब मुझे वो भी देखना था कि वो भी देखूं ऐसा. तो मैं मुकेश हिरानी को भी बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ. तो मैं गया, पहुंचा. अब हम लोग जाके बैठ गए और बैठ के सब एक दूसरे के बगल में बैठे. तो कुछ लोग पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खरीद लिए थे जब तक मैं टिकट लाने गया था.
तो मैं बगल वाले दोस्त से पॉपकॉर्न खाने लग गया। तो जैसे पॉपकॉर्न खाने लग गया, एनडीए का कैडेट है, दिया नहीं, पॉपकॉर्न नहीं दे रहा है, नहीं शेयर करेगा, कुछ लोगों में होता है शेयर नहीं करेंगे। अब हम भी वैसे ही दोस्त है, नहीं शेयर करेगा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती ले लेंगे। तो मैंने जबरदस्ती ले लिया, मैंने ऐसे करके हाथ थोड़ा साइड में और छुप के हाथ लेके ऐसे खा लिया। फिर वो मेरा दोस्त था, तो उसको लगा होगा कि चलो यार ये छील के खा रहा है, इसको दे ही दो। तो इधर आ गया पॉपकॉर्न, तो मैं भी खा रहा हूँ, वो भी खा लिया पॉपकॉर्न। अब हाफ टाइम हुआ, लाइट जल गई। लाइट जला तो मैंने ऐसे ही मेरे राइट में ही था, तो मैंने राइट में मुड़ के पूछने गया कि अब मैं ले आता हूँ पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैं पूछने गया, तो मैंने देखा कि एक कोई दूसरे कॉलेज की कोई लड़की बैठी हुई, बेसिकली उनका पॉपकॉर्न छीन के खा रहा था, और वो मुझे ऐसे देख रहे, बोला आप पॉपकॉर्न छीन के खा रहे थे, पता है आपको? मैंने बोला अच्छा सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया, मैंने सोचा इन्हीं में से कोई बैठा है। तो गलती से मैं उनका पॉपकॉर्न खा गया, तो ऐसा मत करना, ठीक है? वो अच्छी थी तो मुझे छोड़ दिया उन्होंने, माफ कर दिया। मैं दोबारा जाके ब्रेक में पॉपकॉर्न और वो लेके आया, वो हम शेयर किए। बट देन डोंट ट्राई दिस एट होम। तो ऐसा हुआ था एनडीए में। ऐसे बहुत सारे किस्से होते रहते हैं। आई मीन एनडीए इज ऑल अबाउट किस्से होंगे, मतलब आपका हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, क्योंकि कुछ ना वहां पे सेट पैटर्न नहीं। तो ये उसमें से एक किस्सा था। Okay, so okay, if we come to your this movie career, which is currently going on, you're pursuing acting. We last seen you in Chichore, which is like really close to this movie, is really close to the hearts of many people for many reasons now. How was your experience with that? वंडरफुल एक्चुअली। पहली बात तो जब हम सेट में पहुंचे तो वही कॉलेज वाला माहौल था। अब और मुझे ऐसा लगता है वहां का वो माहौल वैसा ही था जैसा आपने जिया है अपने एकेडमी डेज में, बिल्कुल वैसे ही। परफेक्ट। और वही चीज शायद बहुत इजी हुआ, क्योंकि वहां पे कभी ऐसा डायरेक्टर भी ऐसे थे हमारे कि कभी ऐसा नहीं लगा कि यू नो इट्स अ सेट, वी आर वर्किंग फॉर अ मूवी और समथिंग। जब भी हम सीन में होते थे तो हमें ऐसा ही लगता था कि कॉलेज का ही चल रहा है। तो बहुत ज्यादा मजा आया। एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो दैट माय फर्स्ट मूवी वाज विद सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि अभी तो ये अपॉर्चुनिटी आगे किसी को मिल नहीं पाएगा। तो that way I'm very lucky that I got to act with him and learn from him, because he was also you know from a background, from a non filmy background. So हम लोग काफी relate करते हैं जो non filmy background से जाते हैं। तो जब मैंने उन्हें देखा, so you know when you are seeing that a person who has come from outside and doing so good, you understand, आप में वो होता है कि यार मैं भी करूँगा, you know someday I'll also be like him. I mean not like him exactly, but then somewhere I'll be like him and I'll be doing good. तो वो मौका मिला, वो अच्छा लगा। सेट पे जितने भी को एक्टर्स थे अच्छे थे, दे वर वेरी फ्रेंडली। डायरेक्टर तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा स्वीट इंसान। इतना स्वीट इंसान मैंने लाइफ में कम ही मिला हूँ। बिकॉज आई बिलीव कि कुछ लोग होते हैं ना कि आपका ट्रू नेचर जो है ना वो पता चलता है कितना प्रेशर में, जितना आपके ऊपर प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो आपका ट्रू नेचर निकल के आता है, क्योंकि तब आपको आपका पावर दिखाना होता है। तो आई बिलीव कि इतना पैसा लगा हुआ है फिल्मों में, टाइम कंस्ट्रेंट है, सब कुछ है, इतना होते हुए भी द कंपोजर एंड द कामनेस ही मेंटेन्स शोज दैट हाउ मच ही अंडरस्टैंड्स पीपल इन डेप्थ। एंड उनमें कोई वो ईगो नहीं है कि यार कोई प्रेशर नहीं है कि अच्छा नहीं हो पा रहा है तो इन लोगों को ना मतलब गुस्सा नहीं था। तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट अ लॉट। ओके, अभी तक की आपकी जर्नी में कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस और समथिंग इन द इंडस्ट्री? बैड एक्सपीरियंस तो नहीं, एक मजेदार एक्सपीरियंस था। मैं आपको बताता हूँ। जलंधर में मैं तब आर्मी छोड़ने वाला था, तो एक इंसान था, अभी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, मतलब बेवकूफ बनाने वाले बहुत है। तो मैं ये किस्सा इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं वो सीख जाए और उनको इस चीज से सीख मिले कि ऐसे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अब आर्मी में रह के ना आपका एक चीज बहुत अच्छा हो जाता है, सिंस यू आर डीलिंग विद मेन एवरी डे एज एन ऑफिसर, आप ना लोगों को देख के समझ जाते हैं कौन जेन्युइन है कौन नहीं। तो ये बहुत मजेदार किस्सा है। तो मैं एक जगह थिएटर करने जाता था, तो एक बंदा मुझे कांटेक्ट किया, उसने मुझे अपना नाम बताया, कुछ पता नहीं क्या राजवाज करके बताया। एंड ही सेड बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मैं ऐसा प्रोडक्शन कर लेता हूँ, ऐसी डायरेक्शन कर लेता हूँ, मैं आपको लॉन्च वॉन्च कर दूंगा, ऐसा वैसा। तो उसकी बातों से ही पता चल गया कि भाई ये तो कुछ करने वाला है नहीं, बस ऐसे ही यू नो ही इज बिल्डिंग अ वर्ल्ड अराउंड हिम। बट मुझे ये पता चल गया कि ही इज ट्राइंग टू यू नो
एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ मी या कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो इसका पर्पस है, बट स्टिल मैं उससे बात करना चाहता था एंड मैं जानना चाहता था कि ये जो बंदा है इसका क्या थॉट प्रोसेस है। कल को कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूँ एज एन एक्टर, अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग लोग मिले ना, उनके साथ रह जाए, वो बुरे हैं अच्छे हैं, आप समझ पाओगे कि हाउ हिज ब्रेन फंक्शंस। तो मैंने सोचा जी। ना, मैं इस इंसान के साथ रहता हूँ, देखता हूँ ये मेरे को कितने हद तक सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ। तो मैं इसके साथ कांटेक्ट में रहा, इसने मुझे बुलाया मीटिंग में। और उसको पूरा यकीन था कि वो आपको बना रहा है और आप हाँ, बन रहे उसको हो। उसको यकीन हो गया कि ये तो भाई बेवकूफ आदमी है, इसको तो मैं पूरा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। मेरे को बुलाया तो मेरे को बोलता है कि देखो आपके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको लॉन्च करेंगे, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पता नहीं कैसा अंग्रेजी बोला इस तरीके से। तो वो मुझे सपना दिखा रहा है कि मैं नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार हूँ, वो हाँ। मुझे लॉन्च करेगा, जबकि उसका नाम कहीं नहीं है, गूगल में नहीं है, कहीं नहीं है, कौन है पता नहीं, जलंधर में रहता है बंदा, बूढ़ा हाँ। इंसान है बेचारा, बुजुर्ग इंसान है, तभी भी ऐसा काम कर रहा है। तो वो मेरे को बोला कि जब हम आपको पंजाबी में भी लॉन्च करेंगे, थोड़ा पंजाबी पे अपना काम करो और वर्क करो। मैंने बोला क्यों? बोलता है कि आपको पंजाबी फिल्मों में भी लॉन्च करो। हाँ। फाइनली इतना दिन बात करने के बाद वो मेरे को बोलता है एक दिन बुला के, उसमें जब उसको लगा कि नाउ ही इज इनटू मी, ये मेरे को जब भी बुलाता हुआ आ जाता है, हम्म। तो मेरे को बोलता है कि यार रुद्रा, अच्छा तब तक उसे ना ये नहीं पता था कि मैं आर्मी से हूँ, मैं उसको नहीं अच्छा। बताता था कि मैं आर्मी से हूँ। हाँ। मैं उसे ये थोड़ा बताता कि मैं सतर्क भी हो जाता नहीं तो वो एक बार को। हाँ, तो मैं उसे ये बताता कि मैं सिविलियन हूँ और मुझे एक्टिंग करना है, मुझे मूवी स्टार बनना है, तो उस हिसाब से वो मुझे ट्रीट करता था। अब उसने हाँ। मेरे को बुला के फाइनली उसने सोचा कि अब ये बंदा झांसे में आ गया, तो बोलता है देखो आपका ना जनरली तो 5-10 लाख लग जाता है एडवर्टीजमेंट वगैरह में, लेकिन यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड, तो आई विल हेल्प यू एंड मैं खुद से करूंगा, मैं खुद से आपका सारा कुछ करूंगा, तो पर्सनली इट विल बी डन इन 2-2.5 lakhs में हो जाएगा, आप हाँ। मुझे पार्ट पेमेंट करिए। मैंने बोला इतना पैसा तो मैं एक बार में दे नहीं पाऊंगा, तो ठीक है। कुछ देर बात हुआ, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, मैं बोला इतना तो बहुत ज्यादा है। बोलता अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप मुझे 1,25,000 के करीब दे दीजिए, बाकी का बाद में दे देना। मैं बोला नहीं नहीं, 1,25,000 एक बार में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो मेरा प्लानिंग है, मैं आगे मुंबई जाने की सोच रहा हूँ, तो इतना कैसे दूं? तो बंदा इतना मतलब इतना डेस्परेट अभी इंसान था, सीधा आ गया, अच्छा ठीक है भाई ऐसा करो 25,000 दे दो। अच्छा। 10 लाख से 25 पे आ गया। हाँ मतलब 2-2.5 लाख से शुरू किया था, 25 पे आ गया कि हाँ। 25 लाख की 25,000 दे दो, मैं अभी शुरू तो कर दूं आपका काम, बाकी का हाँ। मैं करूंगा। और मुझे पता था ये पैसे लेके भाग जाता। हाँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं 25 तो बहुत ज्यादा है, अभी मैं 25 तो नहीं दे पाऊंगा तुरंत, तो मैं कुछ एटीएम से ही अगर मैं दे सकूं तो 500,000 रुपए निकाल के दे सकता हूँ। तो वो इस बात पे आ गया कि अच्छा आप एक काम करो, मुझे 1,000-2,000 दे दो, क्योंकि अभी ना मेरे पास कैश नहीं है और मुझे कहीं इमरजेंसी जाना है, तो आप मुझे 1,500-2,000 ही दे दो। मैं अब उसको ना, उसका शक्ल इतना सा हो गया कि मैं इस बंदे पे इतना टाइम वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, ये बंदे से मैं 2 लाख मांग रहा हूँ, ये बंदा मुझे 1,500 दे रहा है, बोल रहा है कि 1,000-1,500 दूंगा। हाँ। तो वो 1,500 में मान गया, बोलता है कि 1,500 दे दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको ये पैसा तो मैं आपको लौटा दूंगा, क्योंकि 1,500 तो मैं नहीं रखूंगा, फिर आप जब मुझे दोगे मैं आपका एडवर्टाइजमेंट। फिर मैं उसके साथ हाँ। चल रहा था, फिर चलते चलते मैंने बोला यार देखो ऐसा है, 1,500 नहीं, मैं ना आपको एक काम करता हूँ, 200-250 दे देता हूँ, आप जहाँ पे जाना है वहां पे चले जाओ। तो वो थोड़ा निराश सा हो गया, बोलता है नहीं 200-250। मैंने बोला यार मैं ऑटो करा देता हूँ, तो 200-250 में पहुंच जाएगा, क्या बात है। तो फिर मैं आपसे तू में आ गया, मैं बोला तू 200-250 में पहुंच जाएगा। तो उसको एकदम से पहले शौक लगा कि आपसे तू में आ गया। मैंने हाँ। बोला तू चले जाना 200-250 में। तो फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है ऐसे ना, तब उसको समझ में आने लग गया थोड़ा थोड़ा। फिर मैं थोड़ी देर उसके पास एटीएम के पास चल रहे थे, तो जब मैं हाँ। एटीएम के पास पहुंचा ना, तब मैंने अपना आर्मी रूप खोला। मैं बोला इधर सुन, तुझे पता है कि मैं रुद्राशीष मजूमदार नहीं हूँ, मैं मेजर रुद्राशीष मजूमदार हूँ, और ये जो तू बेवकूफ बना रहा है ना, अभी यहीं पे तो दूंगा कान के नीचे और पुलिस में भर्ती कराऊंगा, तुझे 100 रुपए भी नहीं दूंगा, और उल्टा ना तेरे से पैसे लेके जाऊंगा यहाँ से, तूने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। तो एकदम से अरे नहीं नहीं मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे वैसे करके फिर वो इंसान निकल लिया वहां से।
बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यार अगर तुम चोरी भी करते हो, ठगते भी हो, तो कम से कम थोड़ा सा ईमान धर्म रखो, ऐसे 2.5 लाख से 100 रुपए में मत आ जाओ। मेंटेन अ स्टैंडर्ड, ठीक है? ये नहीं कि मैंने 2.5 लाख मांगा, चलो बंदा कुछ ना करे, सेटल फॉर लाइक 50,000, उसके नीचे नहीं। तो फिर आपका मैं तो मेरे को लगेगा भी कि यार ये हो सकता है जेन्युइन हो। अब तुम यार 2.5 लाख से 100 रुपए में कि चलो यार 100 रुपए दे दो, चाय पी लूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो ऐसे मत करना। और जो जितने एक्टर बनने चाहते हैं, सतर्क रहो, क्योंकि हाँ, पैसे जो भी मांगते हैं इट्स रॉन्ग। इंडस्ट्री में एक चीज समझ लो, आपको कोई पैसा नहीं पे करना है, कोई फेवर्स, नथिंग दैट इज आस्क्ड ऑफ यू इज नॉट टू बी डन। द ओनली फेवर दैट यू डू इज एक्ट इन देयर प्रोजेक्ट, दैट्स इट, एंड बाय दैट दे पे यू, सिंपल। ये सो दैट्स आर्टिस्ट कार्ड के लिए ही इतने हजारों लाखों रुपए ये लोग हड़प लेते हैं। आर्टिस्ट कार्ड बनवाएंगे, आर्टिस्ट कार्ड बनवाएंगे। आर्टिस्ट कार्ड तो ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं एयरपोर्ट में जाओ तो फ्री लाउंज फैसिलिटी मिलेगा, हाँ। ऐसा बताते हैं। और फिर उसके बाद मतलब ये लोग मतलब जनरली कुछ जगह से भी है, मुंबई में ऑडिशंस होते हैं, फेक ऑडिशंस। वो हाँ। आपको बुला के आर्टिस्ट कार्ड का ऐसा झांसा वासा देंगे, बताएंगे कि आपका पैकेज रखते हैं कि सिल्वर पैकेज में आपको वेब सीरीज करा देंगे, गोल्डन पैकेज में आपको। ओ भाई, अगर पैकेज में ही मैं वेब सीरीज कर लेता तो पोर्टफोलियो साथ में फ्री हो जाएगा, वरना पोर्टफोलियो के तो 2-2 लाख रुपए लगते हैं। मतलब वो एकदम ऐसा है कि वो जिम में नहीं बुलाते कि सर आप ऐसा करना, सोना भी ले लेना और आपको हम ऐसा करेंगे, कराटे क्लास भी दे देंगे, 16,000 दे देंगे। तो ऐसा आर्टिस्ट कार्ड वाले भी ऐसा ही करते हैं, तो ऐसे इस झांसे में मत आना। Go with genuine people, and since she is from a production house, she will know कि इनके कैसे कैसे लोग होते हैं, कि जो ना आपको मतलब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पहचान बस इतना होता है कि वो जाके प्रोड्यूसर को एक बार ऐसे कर देंगे तो प्रोड्यूसर बोलेंगे हाँ ठीक है, बस हो सकता है शक्ल से जाने, लेकिन वो इधर के बंदे को, अब बंदे आते बेचारे गांव से आते हैं, कोई कहीं से आता है एक्टर बनने, वो इधर बता के जाएगा अरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जी जी। अभी एक चाइल्ड आर्टिस्ट ही है, उसने काफी काम किया। लास्ट उसने सांड की आंख वगैरह, उसने सचिन तेंदुलकर के साथ इतना एडवर्टीजमेंट की है, मतलब काफी अच्छे है अभी तो उसका करीबन उसकी मॉम का 1-1.5 साल पहले मेरे पास कॉल आता है रात के 12 बजे। शी वॉज बिट अफ्रेड ऑल्सो कि बोलती है कि मैंने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे ये हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कास्टिंग वाले, हम आपका पहले आर्टिस्ट कार्ड बनवाएंगे। मैंने बोला अच्छा, तो आर्टिस्ट कार्ड के एप्लीकेशन के लिए हमें 75,000 रुपए देना है। मैंने कहा अच्छा। फिर बोलते हैं फिर हमें डर लग रहा है हस्बैंड को कैसे बोलूं, ट्रस्ट करें नहीं करें। मतलब एक आर्टिस्ट कार्ड के एप्लीकेशन के लिए तुम 75,000 रुपए मांग रहे हो। उसमें आर्टिस्ट खुद बन जाएगा अपना प्रोडक्शन खोल के, हाँ, अपना खुद का शॉर्ट फिल्म बना के कैनस फिल्म फेस्टिवल में भेज देगा। बहुत गंदी हो रखी है। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे के क्या प्लान्स है? आगे तो अभी प्लान यही है कि फिलहाल एक्टिंग करूं, बाकी मेरा कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कल को मैं कुछ और करूं। जिस तरीके से मैं लाइफ में चलता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता था, आर्मी में चला गया, फिर एक्टर बनने आ गया, तो अब डिपेंड करता है। बट देन फॉर नाउ आई एम फोकसिंग ऑन एक्टिंग, एंड आई एम मेनली फोकसिंग ऑन बॉलीवुड एंड मेन स्ट्रीम, so that's how I am looking forward to, and You're बाकी prepping for a web series as well, no? yeah, I am prepping for a web series right now, वो है Lost, जो कि बंगाली वेब सीरीज है। जी। इट्स अ सुपरनैचुरल थ्रिलर, तो मुझे काफी अच्छा लगा स्क्रिप्ट There's एंड a जो मेरा। different beauty and in fact when it comes to thriller, जो thriller एक बंगाली सिनेमा में मिलता है ना, it's completely different, इतना beautiful। मतलब वो thriller में भी एक अलग म्यूजिक डाल देते हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत डिफरेंट होती है बंगाल की, which is really beautiful। तो वही वाला चीज जो है बंगाल का आर्ट, जो है आप यू नो दे हैव ट्राइड टू दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर वेब सीरीज, एंड आई बिलीव दैट पीपल विल लव इट। आपका how was your first day of posting? अरे ये फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग मेरा बहुत लंबा सा स्टोरी है, मैंने बताया था इसमें, चलो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कर दो। ये ऐसा था बेसिकली, आई मीन इफ वी हैव द टाइम देन आई कैन शेयर इट, बट अदरवाइज मैं We have enough time। वी हैव टाइम। सो मैं आपको बताता हूँ, ये हाँ, ऐसा है क्योंकि मेरी जो बेसिकली मैं एक ऑर्डिनेंस का ऑफिसर हूँ, और ये बहुत हाँ, शायद अच्छा है कि आपके इंटरव्यू से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो माय बेसिक थिंग इज ऑर्डिनेंस, बेसिक माय पेरेंट आर्म। बट क्या होता है, एक ऑर्डिनेंस ऑफिसर का एक इन्फेंट्री अटैचमेंट होता है। तो हाँ। मेरा जो इन्फेंट्री फर्स्ट इन्फेंट्री अटैचमेंट था वो सिक्लाइट इन्फेंट्री में था। तो मैंने रिपोर्ट किया। तो जब मैंने रिपोर्ट किया तो मैं मुझे याद है, मैं जम्मू से बस लेके आई वेंट टुवर्ड्स नौशेरा, नौशेरा के वहां पे
उतरा कॉन्वॉय से, सो यू नो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा यूनिट से गाड़ी आएगा, मुझे लेगा, एंड गाड़ी एंड ऑल, एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग, मेरे जवान लोग थे, आए सीधा एकदम फटाफट हाँ, सैल्यूट एंड जय हिंद साहब ऐसा वैसा। मैंने बोला हाँ जय हिंद, जय हिंद, बताओ। तो वो जय हिंद नहीं, उनका तो था खालसा थे, तो सत श्री अकाल साहब, सत श्री अकाल, चलो। अब मैं हूँ कि चलो चलो चलते हैं। बोला नहीं साहब, वो एक्चुअली एडजुटेंट साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो एडजुटेंट मेरा हेडक्वार्टर में था, तो मैंने बोला जय हिंद सर, हाँ बताइए। बोला यार तू वेलकम टू दिस व्हाटएवर, माय यूनिट नेम मैं नहीं बताऊंगा, सिकलाई, हाँ, एंड हाँ, यू नो गाड़ी में हमने तेरे लिए रम भिजवाया है, वो रम हाँ, कंप्लीट कर ले तो तू गाड़ी में आ सकता है, और अगर तू रम वम नहीं पीता है कि नहीं मैं रम नहीं पी सकता, कंप्लीट नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, नथिंग, तेरे को फोर्स नहीं करेंगे, तू चल के आ जा, पर गाड़ी में नहीं आ सकता। अच्छा चल के आना। हाँ चल के। तो मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। तो मैंने एकदम डिसाइड कर लिया कि हाँ, ऐसी बात है ना, चल के आने की धमकी है ना, तो कोई बात नहीं। मैंने उससे जाके पूछा, ड्राइवर से जो मेरा गाड़ी चलाने वाला था, हाँ, कि अच्छा ये बताओ कितना दूर है। तो बोला साहब गाड़ी से तो लग जाएगा 1-1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और चल के, बोला चल के 4 घंटे में ऐसा वैसा। मैं बोला बस 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं यार, तू एक काम कर, दारू ला दे। अच्छा। 4 घंटे चल के नहीं जाऊंगा मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, देखो घमंड और ईगो रख के कोई फायदा नहीं, चलना बहुत पड़ेगा, दारू पी लो, इजी वे आउट, दारू पी के चलो। आधे तो रास्ते पहुंचने से पहले ही पता चल जाएगा। हाँ हाँ, तो मैंने सोचा कि पी लेते हैं, अब इतना टायर्ड होके आ रहा था मैं, तो मैंने हाँ, सोचा अब उनका अरेंजमेंट बहुत तगड़ा, खालसू का हाँ, ना अरेंजमेंट बहुत तगड़ा होता है, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बर्फ बर्फ सब था गाड़ी के पीछे डिक्की में। हाँ, ऐसा नहीं कि अलग से कोई फ्रिज व्रिज या दुकान दुकान से, सब कुछ था वहीं पे डिक्की में। डिक्की याद है, डिक्की खोल के वहीं पे लगा दिया, वहीं पे एक चेयर लगा दिया, मैं बैठ के आराम से पिया। पीने वीने के बाद अब मेरा मेरा वो था कि मैंने लाइफ में इससे पहले दारू नहीं पिया। अच्छा, हाँ टिल 22 मैंने कभी दारू नहीं पी, मेरे को कभी दारू का शौक भी नहीं चढ़ा था कि मैं पी लूं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं क्या है क्या चीज। ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड हाई इन माई लाइफ में, अभी भी वैसा ही। तो हाँ, अब मैंने पी लिया, मैंने सोचा कुछ इफेक्ट करेगा, तो मैं बहुत ना पूरे रास्ते सोचते जा रहा हूँ दारू का क्या इफेक्ट है, कुछ तो स्पेशल होगा। हो नहीं रहा है, मुझे पता नहीं क्या हुआ, पहली बार था तो शायद चढ़ी नहीं। हाँ, जब मैं पहुंचा तो मेरा सीईओ आया मुझे रिसीव करने, सीईओ एडजुटेंट सारे ऑफिसर्स आए। तो सीईओ हाँ, बोलता हाँ, है कि यार एक बात बता, इसने सही में पिया है क्या। हाँ, एडजुटेंट से पूछा था, एडजुटेंट बोलता है हाँ सर मैंने तो भिजवाया था, पिया तो होगा। हाँ, तो मेरे को बोला यार तू तो दारू तूने कहीं इन खालसों को तो नहीं पिला दिया। मैंने बोला नहीं नहीं सर मैंने खुद पिया है। तो बोला यार तो फिर तो तू पहले से दिन से झूठ बोल रहा है, तू तो बोल रहा है कि तूने कभी दारू नहीं पिया, और तूने अभी तक तो तुझे सो जाना चाहिए था, लटक जाना चाहिए था। मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, पी के आया हूँ। बोला ठीक है। अब हम नीचे गए, अब लोगों को ऐसा था कि यार ये कैसे पी के नहीं आउट हो सकता। तो उन्होंने मुझे कोई गंदा सा कोई ड्रिंक बना के दिया, अब रम हो गया, अब कोई गंदा सा ड्रिंक बना के दिया, बोला इसको पी। तो पहला ग्लास जब मैं पिया तो मुझे तब थोड़ा अच्छा लगने लग गया कि हाँ सब अच्छा है, एकदम मैं कश्मीर में हूँ, अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है और यही है। तो मुझे एकदम मजा आने लगी। हैप्पी भाई एंड। हाँ, हल्का ठंडा ठंडा वेदर, हाँ, यू नो कोल्ड विंड और दारू का गर्म वाला फीलिंग तो अच्छा लग रहा था, जिन्होंने पिया हो उनको बताओ। हाँ, अब जब उन्होंने मुझे सेकंड क्लास दिया, अब सेकंड क्लास भी आगे जब तक मैं कि मतलब टल्ली ना हो जाऊं, तो मैंने सेकंड क्लास भी जब पिया, तो सेकंड क्लास में मुझे थोड़ा बहुत लगने लग गया कि बस अब आज का तो हो गया, अब मुझे बस सोना है। हाँ, कभी भी फिर भी मेरे को समझ में आ रहा था, चीजें समझ में आ रही थी, सब कुछ पता चल रहा था। थर्ड क्लास का पता नहीं मैं पहला सिप लिया हाँ, और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा सीईओ कौन है, मेरा एडजुटेंट कौन है, सारे ऑफिसर्स के शक्ल मिक्स हो गए, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है अरे यार कौन है। और मेरे को अचानक लग गया कि कोई उल्टा बैठा है कोई सीधा बैठा है, और एक्चुअली में मेरे को ना एकदम से घूम गया। हाँ, तो मुझे याद है उन्होंने मुझसे कुछ टास्क वास्क दिया था, वो भी मैंने किया, पर मुझे नहीं याद है, वो मुझे बाद में वीडियो में दिखा कि मैंने ऐसा टास्क किया। हाँ, तो जवान मुझे पकड़ के, मेरे जो सोल्जर्स थे वो मुझे पकड़ के कमरे तक छोड़ के आए ताकि मैं वहां सो सकूं। वहां सो रहा था। फिर वहां पे ऐसा था, मेरे सामने मेरा कपड़ा टंगा हुआ था, लेकिन मुझे वो कपड़ा मिल नहीं रहा था। हाँ, अरे बेड ही नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा रूम है, मेरे को बेड नहीं मिल रहा है कि बेड कौन सा है, मैं जमीन पे ना सो जाऊं, ऐसी हालत है। फिर शाम को मैं किसी तरह उठा तो मैंने थोड़ा पानी वानी पिया तभी भी, लेकिन नशे में ही था, तो हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक सीनियर आया, बोला अबे हम सब वेट कर रहे हैं मेस में तेरा डिनर के लिए, तू क्यों नहीं आ रहा। मैं बोला हाँ, सर, और मैं उस टाइम
मतलब ठीक है, आई वॉज वेरी लेस क्लोथ्ड, तो मैं बोल रहा हूँ सर कपड़े ही नहीं मिल रहे, पहन के क्या जाऊँ। तो उस सीनियर ने फिर मुझे, यही होता है फौज में, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, देखो बॉन्डिंग देखो, उस सीनियर ने मुझे अपने हाथ से कपड़ा पहना, हाँ तो ही ड्रेस्ड मी, ही वाज माय स्कूल टाइप आल्सो, ही वाज आल्सो फ्रॉम आरआईएमसी, तो उसने मुझे ड्रेस वेस कराया, हाथ पकड़ के, अब रास्ता भी थोड़ा पत्थर वत्थर सा था, तो हाँ हाथ पकड़ के मेरे को मेस ले गया कि कहीं ये यहीं पे ट्विस्ट होके ना गिर जाए खाई वाई में। तो ले गए, फिर जब मेस में पहुंचे तो वहां पे जब थोड़ी देर रुका, 1-1.5 घंटा, उन्होंने मुझे बोला दारू पीने की जरूरत नहीं है। तो 2 घंटे बाद जब मेरे को थोड़ा ठीक फील होने लग गया, हाँ तब उन्होंने मुझसे पूछा कि अब हम तेरे को फोर्स नहीं करेंगे, तू क्या पीना चाहता है, बट दारू पीनी पड़ेगी। तो हाँ तब मैंने बोला कि यार जो भी चीज, क्योंकि अभी तक जो पिया वो तो बहुत ही गंदा टेस्ट था, जो भी हाँ अच्छा टेस्टी लगे ना वो पिला दो। तो उन्होंने, किसी ने बोला कि वोडका का अच्छा कॉकटेल बना दो इससे। हाँ तो वोडका का और कुछ मोहितो वोहितो ऐसा, मतलब अभी तो मोहितो पता है, तो तब पता नहीं था, मोहितो वोहितो बना के उन्होंने दिया, तो पिया, तो हाँ मेरे को बड़ा टेस्टी लगा। मैंने बोला यार ये तो कोल्ड ड्रिंक जैसा ही टेस्ट करता है, लेकिन ठीक है, दारू में कोई फर्क नहीं। हाँ तो पिया 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 रात को, फिर बाद में पता चला कि मेरे हाथ में मेरा डिनर प्लेट था, फिर भी मैं, मेरे बगल में सीओ बैठा था, क्योंकि जो आता है डाइनिंग इन होता है वो सीओ के बगल में बैठता है। हाँ तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में, सुना बाद में कि मेरे हाथ में भी प्लेट होते हुए मैं सीओ के प्लेट से चिकन खा रहा था, क्योंकि एक कर्नल साहब है, सो दैट इज द बॉन्डिंग। तो मैं उनके हाथ से, उनके प्लेट से चिकन खा रहा था, फिर बाद में मैं, उन्होंने गाना गाने बोला तो मैंने गाना भी गाया। फिर लोगों ने मुझे बोला कि मैं ये हो गया था, नहीं मैं आइसक्रीम भी उन्हीं के प्लेट से खाऊंगा। तो बहुत एंजॉय किया, मैं This is चोरी all चोरी, happening on the first day of joining. दिस वाज माय फर्स्ट डे। तो मैंने, so that is why I remember my first day so much, and I'm thankful to that unit and thankful to those people that they made my life immensely memorable। और ऐसा था कि अगर आप दारू नहीं पीते तो वो कुछ और कर लेते, तो ये मत सोचना कि इट इज कंपल्सरी टू ड्रिंक, इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। मेरे को ऐसा था कि हाँ ठीक है यार, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, देखता हूँ मेरा लिमिट कितना टेस्ट करेगा, तो हाँ मैं करना चाहता था। तो ऐसा हुआ कि लास्ट में उन्होंने मुझे गाना गाने बोला, तो मैंने गाना वाना गाया, फिर उन्होंने मुझे कमरे में छोड़ दिया। तब मेरे वैसे को गाते था, हो आप? हाँ, नहीं गाते हो? गाना गाना नहीं गाता हूँ, मतलब अब उन्होंने बोला तो गाना पड़ेगा ना, अब ऐसा तो नहीं बोल, हाँ हाँ मैं स्पोर्टी इंसान हूँ, कोई बोला तो मैं गा दूँ। तो मैंने बचपन से ना एक ही गाना प्रैक्टिस करता रहता हूँ, उसी को गा देता हूँ ताकि कभी खराब ना लगे। हाँ अच्छा। तो मेरा ये मैं भी टैक्टिक्स है। करती हूँ ये। हाँ, दूसरा गाना गाने जाओ तो असलियत पता चल जाएगी, तो ऐसा हाँ करता हूँ कि एक ही गाना बार बार गा दो, तो आदमी क्या है कि टाइम से प्रैक्टिस करता रहे तो एक गाने का सुर पकड़ ही लेते हैं। हाँ, तो गला वही भी चीज, थोड़ा सेटल हो जाता है। हाँ तो वही मैंने कर रखा है, तो वही करता हूँ और मैं हर जगह वही गाता हूँ। तो अब मेरा क्या हुआ, जब मैं सोने गया और फाइनली मैं जब कमरे में पहुंचा एकदम नशे में चूर, तो मेरे को लगा दिस वाज अ प्योर वेलकम, और मुझे अब सोना है, अब मैं कल शाम से पहले नहीं उठूं, हाँ ये मेरा प्लान था। और मैं जस्ट एकदम कपड़ा निकाल के, मतलब अपना मेस का कपड़ा क्लोज निकाल के, अपना आराम से नाइट सूट पहन के सोने जा रहा हूँ, जस्ट सोने जा रहा हूँ, तो एक जवान आता है, जय हिंद साहब। मैंने बोला हाँ हाँ जय हिंद, बोलो ऐसा, वही सत श्री अकाल साहब, मैंने बोला हाँ सत श्री अकाल, बोलो हाँ साहब वो अ, अगर आप चलना चाहते हैं तो आदेश तो ये था कि अगर आप चल पाएंगे तो हम पेट्रोलिंग जा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो। हाँ अब बात ये है कि एक जगह मेरा जो हालत है वो बहुत खराब है, मेरा दिमाग जो है बोल रहा है कि बेटा सो जा, क्योंकि वो भी ऐसे नहीं बोल रहा है, कि उसको भी मेरा हालत पता है। तो हाँ उसको आदेश यही है कि साहब को लेके जाओ पेट्रोलिंग, लेकिन वो मुझे ये बोल रहा है साहब अगर आप जाना चाहते हो तो। हाँ एक तरफ मेरा ये है कि एक, वो बोल रहा है कि मेरा दिमाग कह रहा है कि सो जाओ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अगर मैं आज सो गया तो कल को यार मैं इस बंदे को ही लेके कभी जाऊंगा लड़ाई लड़ने, या कभी यही मेरे को फॉलो करेगा, या ही विल ट्रीट मी एज हिज ऑफिसर। हाँ कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 4 कदम चल के गिर जाऊं, लेकिन मैं एटलीस्ट ड्रेस पहन के अपना वेपन लेके निकलूं, हाँ तो नहीं बहुत। बट देन यस, आई गॉट ड्रेस्ड, आई वेंट, 3-4 घंटा था, आई डिड द पेट्रोलिंग, पूरा ऊपर तक क्लाइंब था, मैंने क्लाइंब किया, हाँ सारे जवानों से मिला, उनसे बातें की, उनसे उनके बारे में पूछा वगैरह, फिर मैं लौटा। हर एक पोस्ट में आप बिलीव नहीं करोगे, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आर्मी, क्योंकि क्या होता है जहाँ पे माउंटेन एरिया में आपको हम्म स्पेशल जूसेस चॉकलेट इशू होते हैं, तो हर किसी का अपना अपना कोटा होता है, छोटा छोटा कोटा होता है। हम्म आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हर पोस्ट में पहुंच रहा हूँ, हर पोस्ट से अपना कोटा से जवान जो है अपना मेरा सोल्जर जो है जूस और चॉकलेट, नहीं साहब आपको पी के जाना पड़ेगा।
आप हमारे पोस्ट में पहली बार आए, खा के जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि मैं लास्ट तक पहुंचते पहुंचते यहाँ तक मेरा जूस हो गया, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कि कितना जूस पिला दिया भाई, जूस और चॉकलेट। लेकिन वही उसका प्यार है, दैट मच दे केयर फॉर यू। आप उसे वहां पे बैठ के ना, मैंने बस एक को जस्ट इतना पूछा, हाँ, क्या थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? तो हाँ, एक 2-3 पोस्ट नीचे एक जगह से जहां पे नेचुरल स्प्रिंग वाटर है तो ठंडा आता है, वो हाँ, तुरंत चला गया कि ठंडा हाँ, पानी लेके आएगा। सो दैट इज व्हाट दे आर, कि मेरा साहब यहाँ पे है तो मैं उसके लिए ठंडा। सो ही गॉट दैट वाटर फॉर मी। मैंने उसे मना भी किया, रहे छोड़ दे यहाँ से पिला दे, बट देन ही गॉट कि ठंडा पानी ले आया, मैं ठंडा पानी पिया। सो देन वेंट एंड देन केम बैक एंड देन फाइनली माय फर्स्ट डे का जो वेलकम है वो उस पेट्रोलिंग के बाद खत्म हो गया। एंड देन आई वाज अलाउड टू स्लीप, मेरे को सोने को मिला। एंड देन पीपल वर वेरी हैप्पी कि मैं इतना दारू पिया और रात को फिर भी मैं गया। एंड ऐसा था कि इतना सांस फूल रहा था चढ़ते चढ़ते कि मेरा तो हाँ। 1-1.5 घंटे में नशा गायब ही हो गया था। इतना जूस और पानी पिला दिया, दारू निकल गया शरीर से। तो इस तरीके That's से one मेरा memorable day. वेरी मेमोरेबल डे। तो मैं यही बोलता हूँ कि ऐसे कितने लोगों का है कि ज्वाइनिंग में ऐसा दिन हुआ होगा। That हाँ, is what Indian Army gives you, a memory full of a life full of memory. मैं memory full of life बोलने वाला था। food that you can't give up. Food that I can't give up, I think sweets. Sweets मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बंगाली हूँ। स्वीट्स तो मीठा हमारे यहाँ भी अच्छी होती है, मथुरा वृंदावन की। आई थिंक स्वीट्स एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये जयपुर वाले बोलते हैं कि हमारे इधर के स्वीट्स खा के देखो, फिर उसके बाद किसी और को बोल दो तो वो बोलता है अच्छा आपने यहाँ के स्वीट्स खाए हैं, अबे अरे कभी ट्राई करके देखो। तो आई थिंक स्वीट्स एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मुझे सबसे अच्छा लगता है बंगाली स्वीट्स, क्योंकि मुझे जो रस वाले मिठाई है ना वो सबसे अच्छे रसगुल्ला। लगते हैं। हाँ, वृंदावन आई थिंक दैट साइड थोड़ा, वो मथुरा के तो पेठे पेड़े हो गए, पेड़े। पेड़े पेड़े। हाँ, मथुरा के पेड़े हो गए, वो भी मैंने खाए हैं। तो वो हाँ, थोड़ा ड्राई टाइप का है। द मिठाई दे आर, दोज आर वेरी गुड, आर ड्राई। आगरा के पेठे तो हाँ। ऐसे हर किसी का स्पेशलिटी है। बट देन जो बंगाल का जो वो जो रसगुल्ला और फिर जो वो रसमलाई, रसमलाई बेसिकली जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो रसमलाई फिर वो सब मुझे बड़ा पसंद है। तो मुझे लगता है स्वीट छोड़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। बहुत किस्म का ही स्वीट्स, हर किस्म का। Dating anyone? Is Major Rudra single or committed? मैं ऑनेस्ट मुझे आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद दिस वन। मेरे प्रोफाइल में मैंने अपने फियांसे का फोटो डाल रखा है, मेरे आज की स्टोरी में वो है। इससे ज्यादा और क्या ऑनेस्ट दिखाऊं? आई कंटिन्यूअसली स्पीक अबाउट इट। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई हैव in one forum I have also spoken about how I met her and everything. So yes, I am very much committed. Oh. लेकिन मेरा तो प्लान था कि कोविड में शादी कर लो, ज्यादा किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, कोई बुरा भी नहीं बोल सकता, वो बेस्ट है। और बाकी का जो खर्चा है वो हम कहीं और ट्रिप में लगा देंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं, अल्टीमेटली वेडिंग में तभी मजा आता है जब सब इन्वॉल्व होते हैं, पूरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल। सो यस, व्हेनेवर आई गेट मैरिड डेफिनेटली आई विल कॉल यू। खुश रहो, मजे करो लाइफ में, और क्या। And बाकी all the best for your web series and upcoming projects. थैंक यू सो मच। और जब आऊंगा तो जरूर पेड़े खिलाना, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई रसगुल्ला इज बेटर देन पेड़े, ठीक है? No, I'm not saying. I mean, I love रसगुल्ला. मेरे जो भी बॉन्ग फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले मैं उनको यही बोलती हूँ। मैंने सौंदेश और रसगुल्ला तो ओके, no one can beat them. But तो देखो यहाँ ये अग्री कर गई, तो अब आप अरे समझ गए होंगे कि क्यों मैं बंगाली स्वीट नहीं छोड़ सकता। तो ये अग्री कर चुकी है कि बंगाली स्वीट्स आर बेटर। बाकी हम इस पे बाद में। then again, no one can beat मथुरा का पेड़ा and रसमलाई. तो मथुरा के पेड़े और रसमलाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि रसगुल्ले के बाद आते हैं, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या बात। तो एनीवेज रसमलाई मेरा एक बहुत फेवरेट आई मीन स्वीट है। सो आई डेफिनेटली, मैंने रसमलाई नहीं ट्राई किया वृंदावन में, सो मे बी अरे बहुत अच्छी होती है यहाँ की फिर तो जलेबियाँ, रसमलाई. अब तो दोबारा आना ही पड़ेगा। सो आई विल डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you, टेक thank केयर एंड स्टे सेफ. अभी आप इतना बाहर भी जाते हैं शूट वूट के लिए, जस्ट टेक प्रिकॉशंस, अच्छे से रहिए. Yeah, absolutely, absolutely. I will do that. Thank you Okay. so much, and it was really nice talking to you, because I mean it's quite late in the late that we are interviewing. I mean इतना hectic schedule के बाद, even after your entire day and my entire day, सब काम होने के बाद इतना interview करना, I think a interviewer needs a lot of energy to interview, and then because of your energy I felt energetic to get interviewed and give all the answers.
वरना अगर आप भी पूछते ना कि अच्छा तो एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं ऐसे, तो मेरा भी अभी तक आंसर अच्छा एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं चलो ठीक है, उनको भी बता देना कि कोई नहीं, टाइम से सो जाया करो। सो ऐसा लगता, बट देन दैट्स हाउ इट इज एंड यार आई एम ये वेरी मैं हैप्पी। बोलूंगी, ये रिक्वेस्ट समझ लो, आप कुछ भी समझो, एक एक्ट जो आप कभी करना स्टैंड अप का, भले ही ऐसे ही कर दो। मैं करूंगा जिस दिन मेरा कर मतलब एक्टिंग वैक्टिंग में पूरा हो जाएगा और मेरे को लगेगा कि नहीं मुझे एक स्टैंड अप करना चाहिए, आई डू इट एंड आई डू इट एट अ प्लेटफॉर्म की जहां पे मतलब सबको दिखे, और मैं मस्त जरूर करूंगा। और आई ट्राई टू डू इट बेस्ड ऑन द आर्मी एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव। सो हाँ ऐसा हाँ, जरूर 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 करूँ। सबसे पहली टिकट मैं ही खरीदूंगी, मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल, बस तो ये हो चुका है। Bye. ओके रुद्र, टेक केयर, बाय बाय।